Part second, the topic is change in agricultural production. By the time people began to use iron, they had learned agriculture. In fact, agriculture was the chief occupation of the people in the villages. Some villages became very prosperous. The farmers grew a variety of crops using new methods of agriculture. One such method was a system of transplantation of seeding or small plants. In the system, the peasants did not scatter the seed on the ground for the plant or sprout. Instead, small saplings were raised and then carefully transplanted in the bigger fields. Initially, the farmers were entirely dependent on the rains for irrigation the farms. When the rain failed, the crops withered. To prevent this, farmers slowly began to think of other methods of irrigation. The fields, such as method include irrigation through canals, wells, tanks, and artificial lakes. Archaeologists have discovered the ruins of such tanks and lakes at various places. इसमें बताया गया है कि खेती करने के तरीके में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आए। तो इसमें बताया है शुरू से ही कि जो एग्रीकल्चर था वो एक कॉमन ऑक्यूपेशन थी हर इंसान की। हर दूसरा इंसान एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था अपने घर बार को चलाने के लिए। और लोहे की खोज के बाद ये और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग और आसान हो गया। नए नए मेथड्स आने लग गए क्रॉप्स को उगाने के लिए। बहुत से मेथड्स आ गए, जैसे कि एक मेथड था कि अब जो फार्मर्स हैं वो खेतों में बीजों को ऐसे सीधा घेरते नहीं थे लगाने के लिए। अब उन्हीं बीज को एक छोटे फील्ड पे उगा लिया जाता था इकट्ठे। छोटे छोटे प्लांट्स जब उग जाते थे तो उनको बिगर बड़े बड़े खेतों में लगाया जाता था। फिर सेकंड पैराग्राफ में बताया कि पहले जो फार्मर है वो सारा का सारा डिपेंड होता था बारिश के ऊपर। अगर बारिश आई तो ठीक है, अगर बारिश नहीं आती थी तो उनका सारी फसल ख़राब हो जाती थी। तो धीरे धीरे इसके भी मेथड्स आने लगे। उन्होंने जैसे लोहे की जब खोज हुई तो वहाँ से उन्होंने अपने तरीके निकाले। वेल्स, टैंक्स बनाने शुरू कर दिए, आर्टिफिशियल लेक्स बनानी शुरू कर दी, कैनाल्स बनानी शुरू कर दी, पानी को स्टोर करना शुरू कर दिया, ताकि जो उनको बारिश पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े अपने हर एक काम के लिए। और इसको बनाने में जो राजा थे, किंग्स वगैरह थे, वो भी हेल्प करते थे फार्मर्स की। उनके टैंक्स बनवाने में बनवा दिए और इसके बदले में फार्मर जो है उन्हें टैक्स पे किया करते थे। Read this expert from the Arthashastra. You will be able to understand the duties of the king with regard to the development and promotion of agriculture. The king would construct new village on new site or on old ruin by sending people from densely populated areas. Villages would consist each of not less than 100 families and of not more than 500 families of agriculture people. Boundaries shall be denoted by a river, a mountain, forest, plants, caves, artificial buildings, or by trees. There shall be set up a Sthanalya in the center of 800 villages and Sangrahana in the midst of a collection of 10 villages. The interior of the kingdom shall be watched by trap keepers, archers, hunters, chandals, and wild tribes. Lands may be confiscated from those who do not cultivate them and give to others. If cultivation weigh their taxes easily, they may be favorable supplied with grains, cattle, and money. Spiritual guides, priests, those learned in the Vedas, superintendents, accountants, gopas, veterinary surgeons, physicians, horse trainers, and messengers shall be granted lands yielding sufficient produce and exempted from tax and fines. He shall also construct reservoirs filled with water, either perennial or drawn from some other sources, or may produce with sites, roads, timber, and other necessary things to those who construct reservoirs of their accord. He shall protect agriculture from the molestation of oppressive fines, free labor, and taxes, cattle from thieves, tigers, poisonous creature, and cattle disease. तो जैसे जो राजा थे उन्होंने भी काफ़ी प्रमोट करा एग्रीकल्चर को। वो किस तरीके से करा वो बताया गया है इसमें। जैसे जो राजा थे उन्होंने नए नए गांव बनाने शुरू कर दिए नई नई जगहों पे, और उसके रूल्स रखे। कुछ रूल्स ये थे कि कोई भी गांव में 100 से कम फैमिलीज़ नहीं होंगी और 500 से ज़्यादा फैमिलीज़ वहाँ नहीं होंगी ऑफ एग्रीकल्चरल पीपल, जो कि खेती बाड़ी पे डिपेंड होते हैं। और उनकी बाउंड्रीज़ कैसे बनाएगी, कोई रिवर थी या कोई माउंटेन था, वो तो उनको बाउंड्री बना दिएगा कि इसके इस पार ये वाला गांव है, इसके इस पार दूसरा गांव है।
और जो 800 विलेजेस के बीच में एक चीज़ बनाई गई जिसे बोला जाता था स्थानीय, ये सेंटर में होती थी बिल्कुल। और 10 विलेजेस के बीच में एक चीज़ बनाई गई जिसे बोला गया संग्रहाना। ये ऐसी ऐसी मॉन्यूमेंट्स थी जो इनके बीच में बनाई गई। और इस पूरे राज्य के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसकी देखरेख के लिए ट्राइब्स, जंडाल्स, हंटर्स को हायर किया गया। और जो लोग खेती नहीं करते थे, कल्टीवेट नहीं करते थे, अपनी फसल पे कुछ नहीं, अपनी ज़मीन पे कुछ नहीं उगाते थे, उनसे जो ज़मीन लेके उन लोगों को दे दी जाती थी जो कि उस पर अनाज उगाया करते थे। और उसके साथ साथ ये फैसला भी लिया गया है जैसे कि जो स्पिरिचुअल गाइड्स हुआ करते थे, पंडित होते थे या ऐसे लोग थे जिनको वेद के बारे में नॉलेज थी, अकाउंटेंट्स थे, सर्जन्स थे, फिजिशियंस थे, तो उन सबको उन्होंने टैक्स से एग्जम्प्ट करा दिएगा कि ये लोग कोई भी फ़ाइन या कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो राजा था उसने ये भी फैसला लिया कि जो पानी को है उसे कैसे बचाना है, तो उसके लिए टैंक्स बनाए गए, रिजर्वरियर्स बना दिए गए ताकि जो पानी है वो स्टोर हो सके और वो एग्रीकल्चर में काम आ सके। तो इस तरह काफ़ी बड़ा रोल रहा है राजाओं का भी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में। The next topic is people in the villages. People belonging to different social classes live in the villages. For example, in the Kerala, Tamil Nadu regions, there were three main classes of people in each village. These were the rich landowners or velalars, the ordinary plowman or uzawar, and finally the landless laborer, including slaves called kadasiyar. Most villages had a village headman in North India. He was called Grama Bhojka. His post was generally hereditary. Usually, he was the largest landowner of the village. He had many slaves and workers to cultivate his vast lands. On behalf of the king, he collected taxes from the people in the villages. In many instances, the Grama Bhojka also performed the duties of a policeman and a legal judge. Beside the Grama Bhojka, there were many other independent farmers in the village. They were smaller undertown called Grihapatis. Below them were the Dasa Karmakara who did not own land. They earned their living by working in the fields of others. Each village also had a small population of blacksmiths, potters, carpenters, and weavers. The potters were particularly important because they produced a wider variety of mud vessels used by people in the villages and the cities. One such type of mud vessel are called black and red ware. These vessels are black on the side and red on the other. Another important type of pottery is the northern black polished ware. It is black in color and exhibits a very fine polish or sheen. It was first produced around 500 BCE in the Ganga Valley and was extensively used throughout the Maurya Empire. तो इस टॉपिक में लोगों के बारे में बताया गया है कि गांव में कैसे कैसे लोग होते थे। तो बेसिकली क्या था कि जैसे सोशल क्लासेस के बेस पे उन्हें डिवाइड किया गया था। जैसे केरला और तमिलनाडु में मेनली 3 क्लासेस थी, जैसे कि रिच लैंड ऑनर्स हुआ करते थे, वेलालर्स हुआ करते थे, या फिर ऑर्डिनरी प्लोमैन हुआ करते थे, एंड उजावार्स हुआ करते थे। काफ़ी सारे विलेजेस में हर विलेज का एक हेड हुआ करता था और नॉर्थ इंडिया में उसे बोला जाता था ग्रामा भोज का। इसकी पोस्ट हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी मतलब जैसे फादर के बेटे को आगे पोस्ट मिली, फर्दर उसके बेटे को पोस्ट मिली, तो ऐसे ऐसे इसकी पोस्ट हेरिडिटरी हुआ करती थी। और ये कौन होते थे मेनली? ये वो होते थे जिनके पास काफ़ी सारी ज़मीन हुआ करती थी, लैंड ओनर्स हुआ करते थे, और इनके अंडर बहुत से वर्कर काम करते थे और ये दूसरों से अपने खेतों का काम करवाया करते थे। किंग के बिहाफ पे ग्रामा भोजका की ड्यूटी थी लोगों से टैक्स कलेक्ट करने की, और ग्रामा भोजका कई बार पुलिसमैन की ड्यूटी भी करता था। ग्रामा भोजका के अलावा कुछ ऐसे फार्मर भी थे जो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन कुछ फार्मर ऐसे भी थे जो बहुत छोटे थे और उनके पास अपनी कोई लैंड नहीं थी। वो दूसरों की लैंड पर खेती करके अपने घर का पालन पोषण करते थे, और जिनके पास लैंड नहीं होती थी उन्हें बोला जाता था दासा कर्मकारा। और उसके बाद हर विलेज में ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर और वीवर्स हुआ करते थे। इनकी पॉटरी बहुत मशहूर थी और ये काफ़ी अच्छा काम किया करते थे। जो कुम्हार कहते हैं जिन्हें हम, पोटर्स को, ये मिट्टी के वेसल्स बनाते थे, घड़े बनाते थे और मिट्टी की चीज़ें बनाते थे जो कि विलेजेस में और सिटीज़ में, गाँव में और शहरों में बेची जाती थी।
और इनके जो सबसे अच्छा टाइप था वो था ब्लैक एंड रेड वेयर। इसमें क्या होता था कि एक साइड काली होती थी वेसल की और एक साइड लाल हुआ करती थी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट इनकी पॉटरी है जो यहाँ काफ़ी पसंद की जाती थी लोगों के द्वारा, वो था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। इसमें क्या होता था कि काफ़ी अच्छी पॉलिश, ब्लैक कलर की पॉलिश करके वेसल के ऊपर फिर उसे बेचा जाता था। और इसे मेनली मौर्य एम्पायर के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स। By now, you may have realized that during this period there were many traders and craftspersons. They occupied an important position in society. As you have read earlier, people belonging to a particular craft or trade often formed themselves into an association or guild or shreni. These guilds could in some way be compared to the trade unions of modern times. Broadly, the ancient guilds were of two types: merchant guilds and craft guilds. The merchant guilds were built of traders or merchants, and among the craft guilds there were guild of weavers and goldsmiths. The merchant guilds organized trade activities on behalf of its members. Many of the craft guild provided technical training to the younger craftsperson. The guild also helped its member by procuring raw materials such as cotton or ivory for them. The guild even helped in marketing or selling goods produced by the craftsmen. Often the shrenis served as banks where wealthy men and women invested money. This money was used to provide loans to traders and craftsmen. Some guilds were very rich and they gave lavish donation to temples and monasteries. सो इस टॉपिक में गिल्ड्स के बारे में बताया गया है। अब गिल्ड्स क्या होते हैं? गिल्ड्स वही लोग होते हैं जो कि उनका काम जानते हों, सेम वही काम करते हैं जैसे जो कुम्हार हैं और मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं, तो वो गिल्ड्स उन्हें बोला जाएगा जो उसी टाइप के लोग हैं। तो उनको सबको इकट्ठा करके उनको गिल्ड बोला जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे अपने टाइम पे, इनका काफ़ी इज्जत हुआ करती थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट थे ये, इनकी काफ़ी अच्छी पोजीशन थी क्योंकि ये क्राफ्ट पर्सन थे। और जो गिल्ड हैं, बेसिकली जो गिल्ड्स हैं उन्हें दो तरह से डिवाइड किया गया था, मर्चेंट गिल्ड्स और क्राफ्ट गिल्ड्स। तो मर्चेंट गिल्ड्स उन्हें बोला जाता था जो क्या काम करते थे, ट्रेडर्स और मर्चेंट के गिल्ड्स हुआ करते थे, जो व्यापारी का काम करते थे, उन्हें मर्चेंट गिल्ड्स बोला जाता था। और क्राफ्ट गिल्ड बोला जाता था जो कि गोल्ड स्मिथ और वीवर हुआ करते थे, जो बुनने का काम करते थे और लोहार का काम किया करते थे। अब इन मर्चेंट की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, काफ़ी काम करा करते थे। ये क्या करते थे, जो इनके यंग लोग हैं जिन्हें अभी काम नहीं आता, उन्हें ट्रेनिंग भी दिया करते थे। ट्रेनिंग के साथ साथ ये अपने मेंबर्स के लिए रॉ मटेरियल जैसे कॉटन और आइवरी का इंतज़ाम भी करते थे। ये अपने जो इनके मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए बेचा भी करते थे सामान को और उनकी हेल्प भी करते थे, उनकी मार्केटिंग करने में, मतलब मशहूरी करने में उनकी हेल्प किया करते थे। फर्दर इनको श्रेणीज़ भी बोला जाता था गिल्ड्स को। इन श्रेणी ने अपने बैंक खोलने शुरू कर दिए। यहाँ पर जो रिच मेन और वुमेन थे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे और ये उस पैसे का लोन देते थे व्यापारियों को ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें। और जो काफ़ी गिल्ड्स ऐसे रिच भी थे जो कि अपना काम के साथ साथ काफ़ी डोनेशन भी किया करते थे। तो ये टॉपिक ख़त्म होता है, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।